اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، پاکستان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے مہنگائی کا۔ گزشتہ روز موجودہ حکومت، جس کو امپورٹڈ حکومت بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس نے 30 روپے لیٹر مزید پٹرول مہنگا کر دیا۔ حالانکہ چند روز قبل جب انہوں نے 30 روپے لیٹر پہلے مہنگا کیا تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب بجٹ تک پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا، اور لوگوں نے بامر مجبوری وہ کہتے ہیں سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، حکومت کی پیٹرول کو مہنگا کرنے کی جو 30 روپے تھی اس کو شاید ہضم کر لیا تھا، مگر پرسوں دوبارہ 30 روپے لیٹر مہنگا کرنے کے بعد عوام اور خصوصاً غریب عوام نہ صرف پریشان ہے بلکہ وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا حکومت میں آنے سے پہلے کیا بیانیہ تھا، کیا نعرہ تھا، کیا وہ سبز باغ عوام کو دکھا رہے تھے، اور حکومت میں آنے کے فوراً بعد یکسر انہوں نے نہ صرف اپنے بیانیے کو بدل دیا بلکہ جو سنہرے خواب اور سبز باغ عوام کو دکھائے تھے وہ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اللہ الحق ہے، انہوں نے موجودہ حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ جب یہ موجودہ حکمران اپوزیشن میں تھے تو دن رات ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، غریب عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور جب بھی 15 دنوں کے بعد، ہر 15 دنوں اور ایک مہینے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ ان پر نظر ثانی ہوتی ہے، کبھی زیادہ تر بڑھتی ہی رہی ہیں مگر کبھی کبھی کم بھی ہوتی رہی ہیں، تو جب بھی 15 دن بعد یا مہینے بعد تیل کی قیمت بڑھتی تو یہی جو آج کے حکمران ہیں اور 3.5 سال اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایک ہی راگ الاپتے تھے، ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، بلکہ دن میں 3 بار ایک شخص پریس کانفرنس کرتا تھا کہ جناب حکمران جو ہیں نااہل ہیں، نالائق ہیں، حکمران جو ہیں وہ ان کا تجربہ نہیں ہے، وزراء نااہل ہیں، وزیر اعظم نااہل ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، ان کو حکمرانی کا تجربہ نہیں ہے، لہذا ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ مگر سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ہی بات کہتے تھے ہر موقع پر کہ یہ مہنگائی جو ہے بین الاقوامی سطح پر مہنگائی ہوئی ہے، یہ حکومت پاکستان کی وجہ سے، یا صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی، مگر مریم صفدر صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ دن میں 3 پریس کانفرنسیں کرتے تھے کہ ہم سے غریبوں کا حال دیکھا نہیں جاتا، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لہذا ان حکمرانوں کو جانا چاہیے، عمران خان اور اس کے رجیم کو، اور ہم آئیں گے تو عوام کے لیے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم آئیں گے تو پٹرول 100 روپے کا کر دیں گے، ہم آئیں گے تو ڈالر 100 روپے کا کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آٹا سستا کر دیں گے۔ مگر عمران خان صاحب صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے جو بین الاقوامی طور پر معاشی بحران آیا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بین الاقوامی سطح پر بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل سطح پر بڑھی ہیں، مگر موجودہ حکمران ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں پر جب نظر ثانی ہوتی تو ایک ہی بات کہتے کہ جناب نااہل حکمران۔ مگر اللہ الحق ہے، حق سامنے آتا ہے۔ یہ
इमरान खान के बुग़्ज़ में और उस दुश्मनी में तमाम अपोजिशन जो थी मिलकर उसकी किरदार कशी में लगी हुई थी कि अल्लाह अल्लाह करके 3.5 पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को हुए थे कि उन्होंने नहायत दलेरी से, बाज़ लोग कहते हैं बेवकूफ़ी थे या नलायकी से, मगर नहीं, हकीकत यह है कि नहायत दीदा दलेरी से रशियन हुकूमत की दावत पर रूस के दौरे का फ़ैसला किया। ये उनका इनफरादी फ़ैसला नहीं था, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट और वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला और पाकिस्तान के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, सीनियर फॉरेन अफेयर में जिनके तजर्बे थे, उनकी मुशावरत से वो रशिया के दौरे पर गए। मगर अमेरिका को ये किसी सूरत कबूल नहीं था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान किसी भी सतह पर सफारती तल्लुकात में इजाफा हो या उनके तल्लुकात में जो गुज़श्ता 70-75 साल में सर्द मोहरी या दूरी थी, ये दूर हो जाए। अमेरिका ने अपने सतह पर तमाम सफारती अखलाकी चीज़ों को बालाताक रखते हुए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रशिया का दौरा करने से रोका। वैसे भी अमेरिका इमरान खान साहब के इस फैसले से कि एब्सोल्यूटली नॉट, हम अमेरिका को कभी भी पाकिस्तान में अड्डे नहीं देंगे, अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, अमेरिका पेचोताप खा रहा था। लिहाजा जब रशिया के दौरा किया तो ये सोने पे सुहागा हो गया। अमेरिका पहले ही फैसला कर चुका था कि इमरान खान की हुकूमत को चलने नहीं देना, लिहाजा उसने फिर डोनाल्ड लू, अपना जो अंडर सेक्रेटरी स्टेट है, उसके थ्रू पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इमरान खान को घर भेजो, वरना इसके नताइज वो भुगतना पड़ेंगे, और अगर इमरान खान को आपने हुकूमत से निकाल दिया तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अपोजिशन की उनके राब्ते में थी पहले दिन से अमेरिका के इमरान खान की मुखालफत में, लिहाजा अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर मुबैना तौर पर ये तय कर लिया कि इमरान खान की हुकूमत को हम फारग करते हैं, और उसके लिए उन्होंने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी, और उसको हर हरबा इस्तेमाल करते हुए, इमरान खान के इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाते हुए, इमरान खान की पार्टी के अफराद को तोड़ते हुए, जिनको लोटा कहते हैं, लोटा बनाते हुए उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को फारग कर दिया। और जब इमरान खान की हुकूमत को फारग कर दिया तो आते ही सबसे पहले उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो फिर जिस तरह पहले ये कहते थे कि इमरान खान नाअहल है, नालायक है, महंगाई कर रहा है, और हर 15 दिनों में मोहतरमा मरियम सफदर साहबा, मरियम औरंगज़ेब, बिलावल ने तो इस पर लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, कराची से इस्लामाबाद तक, और रोज़ाना जलसे कर रहे थे और हलकान हो रही थी अपोजिशन कि हम गरीब अवाम के साथ हैं, ये जो महंगाई हो रही है ये गरीब अवाम के साथ जुल्म है। और जब भी तेल 1, 2, 4 रुपये ऊपर नीचे होता तो कहते पेट्रोल बम मार दिया। जब हुकूमत में आई अपोजिशन और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के बाद इक़्तिदार, ज़माम इक़्तिदार इनके हाथ में आया, तो आते ही इन्होंने अपना बयानिया फ़ौरन बदला और उसमें ज़रा भी झिझक या शर्म महसूस नहीं की, और आते ही कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें जितनी भरनी चाहिए थी नहीं भराई, इसलिए तो आने वाली हुकूमत के लिए वो क्या कहते बरूदी सूंघें बिछा दी हैं और आने वाली हुकूमतों के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। तो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर इमरान खान ने जुल्म किया मुल्क और कौम के साथ, मगर हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम को तंग नहीं करेंगे। लिहाजा इन्होंने दोहरा मेयार अपनाते हुए सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम आवाम को रिलीफ देंगे,
عوام کے لیے آئے ہیں, महंगाई کو कम करेंगे, और शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए थी इमरान खान ने नहीं बढ़ाई, लिहाजा हमें ये सोचना पड़ेगा. मगर उस IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए दूसरे दिन ये हुकूमत में आते तैयार हो गए, जिसके मुतल्लिक इनका ये बयानिया था और ये इनका नारा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF के आगे गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक को उसके आगे गिरवी रख दिया है, पाकिस्तानी कौम को IMF का गुलाम बना दिया है. तो आते ही एक और बयानिया तमाम मफ्ता इस्माइल से लेकर बिलावल तक और बिलावल से लेकर मरियम सफदर और मरियम औरंगजेब साहिबा तक, इस बयानिए पर भी उन्होंने दिन रात चीखना चलाना शुरू कर दिया कि IMF से किए हुए वादे इमरान खान ने पूरे नहीं किए, और IMF को ये यकीन दहानी कराई कि हम आते ही आपके साथ नए सिरे से मुज़ाकरात करेंगे, और साथ ये भी कहा कि हम उरांग को रिलीफ देंगे. मगर दरअसल ये अमेरिकन एजेंडे पर आए थे. मुझे तो खौफ है कि मुबैना तौर पर ये पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने और पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये अदम एतमाद लाए थे. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कोविड के दौरान वाहिद पाकिस्तान है जिसकी एक्सपोर्ट शूट की है, और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुज़श्ता 75 साल में उस लेवल पर एक्सपोर्ट के लिए आइंदा 20 साल के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट के आर्डर हैं, अगर हम इसी सतह पर देते रहें. तो इन्होंने महंगाई जो इमरान खान ने की थी उसके खिलाफ नारे लगाते हुए जब हुकूमत में आए, तो मैं आप ये जब देखता हूँ फिगर कि गरीब अवाम के लिए 3.5 साल में इमरान खान ने 15 से 16 रुपए किलो आटा महंगा किया. यानी 3.5 साल में आटा 15 से 16 रुपए किलो तक महंगा हुआ, और मौजूदा 2 महीने में 20 रुपए किलो महंगा कर दिया. ये अवाम की मोहब्बत में आए थे, गरीबों की हमायत में आए थे. घी की कीमतें गुज़श्ता 3.5 साल में 200 रुपए किलो तकरीबन बढ़ी, कमोबेश 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है. और मौजूदा हुकूमत जो 2 महीने में आई, 2 महीने नहीं हुए जिसको, उसने भी 2 महीनों में 200 रुपए किलो घी बढ़ा दिया. कमोबेश ऊपर हो सकता है 5-10 रुपए नीचे या ऊपर. मगर देखने की बात यह है कि 3.5 साल में चावल जो है वो तकरीबन 30 से 40 रुपए किलो महंगे हुए, और इस हुकूमत में 55 से 60 रुपए किलो महंगे कर दिए 2 महीनों में. पेट्रोल जो था, जो ये कहते थे पेट्रोल बम, हर 15 दिन बाद कि इमरान खान ने पेट्रोल बम मार दिया, पेट्रोल बम. 3.5 साल में जितने भी उसने बम मारे ना डीजल और पेट्रोल की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, वो थे 56 रुपए 90 पैसे लीटर. इमरान खान की हुकूमत में टोटल पेट्रोल महंगा हुआ. और इसी तरह डीजल की कीमतें गुज़श्ता 3.5 साल में 50 रुपए 70 पैसे बढ़ी. हर 15 दिन बाद इसमें इसकी कीमतों का भी तयन होता था, कमी बेशी होती थी. 3.5 साल पूरी अपोजिशन इस बात पर उद्यम मचाती रही कि डीजल बम आ गया, पेट्रोल बम आ गया, और पेट्रोल बम मार दिया. इमरान खान की नाहल नलायक हुकूमत ने पेट्रोल बम मार दिया, और 3.5 साल में सिर्फ 50 रुपए 70 पैसे डीजल की कीमत बढ़ी. और वही अपोजिशन जब हुकूमत में आई है तो आते ही 2 महीनों में, सिर्फ 60 दिनों में 60 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी है उन्होंने. और ये अवाम की हमदर्द हुकूमत आई है, ये तजर्बाकार हुकूमत आई है. ये वो हुक्मरान है जो 1985 से हम पर मुसल्लत है. यानी कि गुज़श्ता 37 साल से 35 साल से जो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, इनको इतना बड़ा तजर्बा था कि पिछली हुकूमत को कहते थे कि नाहल नलायक हुक्मरान है और महंगाई कर रहे हैं. उन्होंने 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की. मैं इससे भी आगे आता हूँ. चलो पेट्रोल वगैरह की कीमतें जो बढ़ी सो बढ़ी, ये तो जो मोटरसाइकिल चलाता है या जिसके पास गाड़ी वगैरह है वो रोज़ाना जब पेट्रोल डालेगा तो इस पे बात करेगा. मैं ऐसी बात करने लगा हूँ जिससे हर शख्स मुतासर हुआ है, और वो है बिजली. गुज़श्ता 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत ने जो बिजली के पर यूनिट, 1 यूनिट पर जो
बढ़ोतरी की थी वो 5 से 6 रुपए यूनिट थी तकरीबन। इसमें 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, आने रुपए हो सकते हैं। 5 से 6 रुपए यूनिट महंगी बिजली की। और ये तजर्बाकार हुकूमत जो गुज़श्ता 3.5 साल सुबह दोपहर शाम आवाम को एक ही चीज़ बावर कराती थी कि महंगाई कर दी है इमरान खान ने, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, नाअहल नालायक सिलेक्टेड। इमरान खान की हुकूमत में 5 से 6 रुपए यूनिट तक बढ़ोतरी हुई बिजली की पर यूनिट। और ये तजर्बाकार हुकूमत ने 10 रुपए यूनिट, वो वजीर आजम जो ये कहता था कि मैं अपनी कपड़े बेच कर आवाम को रिलीफ दूंगा, उसने 10 रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी। कपड़े क्यों बेचने हैं? अपनी शुगर मिलें बेचें, वक्फ करें इमरान मुल्क के नाम। अपने जो सरे महल है और लंदन, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी में जो दौलत है वो पाकिस्तान ले है, वो दे दें। कपड़े क्यों बेचने हैं? मगर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आखिर में कि पिछले दिनों जो एक दिन पहले मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा कह रही थी कि इमरान खान को बेशरम, बेहया, सिलेक्टेड, ये वो, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बदज़बानी कर रही थी। और तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो इमरान खान ही है। पहले कहती थी इमरान खान महंगाई कर रहा है, अब कहती थी कि इमरान खान जो है पेट्रोल महंगा करके नहीं गया, हम पर बोझ डाल गया। कहीं तो सच बोले। चलो एक सच तो बोल दें, सिर्फ एक सच, कि आपकी लंदन और पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। चलो इस बारे में सच बोल दें, और किस किस की है ये भी बोल दें। मैं इसी गुफ्तगू के साथ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जो कोलो फेल में तजाद है, अल्लाह ताला इनके तजाद को दूर फरमा, इनको राह हदायत अरगार फरमा। और अल्लाह सुब्हान ताला से गुजारिश है कि मेरे कोलो फेल में भी जो तजाद है वो दूर फरमाए। और मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो हमारी खुद मुख्तारी, सालमियत, हमारी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ऐसे वज़ीर आज़म या हुक्मरान नहीं चाहिए जो अमेरिका में चेक आउट होते हुए अपने कपड़े भी उतार दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।